Welcome, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine and you all are doing your work. My dear students, firstly tell me, is there any doubt in basic term and exercise 4.1? Okay, if not any type of doubt, then today we will discuss exercise 4.2. If there is any doubt, then you can comment me. Okay, now my dear students, this exercise 4.2 first sum. If y equal to 3x plus 5 has, अगर y की वैल्यू गिवन है, हैज़ मैंने वो क्या रखता है, देर आर थ्री ऑप्शन, वी हैव टू चूज ओनली एनी वन ऑप्शन. My dear students, yesterday we discussed about all this, that a linear equation in two variable has infinitely many solutions, but linear equation in one variable has only one solution. Now this is y equal to 3x plus 5. That means this is a linear equation in two variable. Okay, the two variable है, then which option is right? Unique solution, infinitely many solutions, or only two solutions? Anybody can tell me? Yes, my dear students, infinitely many solutions. You can prove that. How can you prove that a linear equation in two variable has infinitely many solutions? Anybody can tell me? Yes, my dear students, I told you that if you put the value of x and y in the given equation, if left and right are equal, that means that the value of x and y are the solutions of the given equation. Okay, अब एक there are two ways. Firstly, you assume x को ये रखेंगे, y को ये रखेंगे, तब हमारी equal values आ जाएंगी, that are solutions. Second way, second method, just you have to put the value of x, and after solving that equation, whatever the value of y is, that is your solution. Okay, चलो check करते हैं. Here y equal to 3x plus 5. y equal to 3x plus 5. ठीक है, my dear students, अब यहाँ y के प्लेस पर क्या रखूँ कि 3x plus 5 इक्वल आ जाए. ठीक है ना. If I put y equal to 8 and x equal to 1 plus 5, 8 equal to 8, लेफ्ट और राइट तो सेम आ गया, लेफ्ट एंड राइट सेम है, दैट मीन्स x एंड y, एक्स वाई मीन्स 1,8 इज सॉल्यूशन. ये इसका सॉल्यूशन है. दिस इज द फर्स्ट वे. एंड सेकेंड वे, जस्ट वी हैव टू पुट ओनली वन वैल्यू. आप इनमें से कोई भी वन वैल्यू पुट करो. या मैंने x को 1 लिया, y को 8, हम सिर्फ x को 1 पुट करते हैं. ठीक है ना. आप लिखोगे पुट x इक्वल टू 1, सिर्फ y को एज इट इज रहने दो, x को 1 पुट करो, प्लस 5. देखो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8. तो y तो वही 8 आ गया जो मैंने स्टार्टिंग में पुट भी किया था. तो यहाँ भी क्या सॉल्यूशन हुए, 1 और 8. आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे, वट एवर द वैल्यू ऑफ y, दैट आर आवर सॉल्यूशंस. तो वो x और y की दोनों बोथ वैल्यूज आर आवर सॉल्यूशंस. तो एक तो आप पुट करके दिखाओगे. सेकंड, दिस इज द इजी वे, बिकॉज आपको सिर्फ ए की वैल्यू अज्यूम करनी है, सेकंड ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्योंकि वो वैल्यू उसी इक्वेशन को सॉल्व करने से आई है. दैट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर आवर सॉल्यूशंस. ओके, so my dear students, this is the first sum and you have to just write it has infinitely many solutions. And how can you prove? You have to put just 3 or 4 values and you can write that so that in many ways we can find the value of we can find the solutions. Okay, now my dear students, in second sum we have to find the 4 solutions of all 3 linear equation in 2 variable. We have to find out 4 solutions. Means the first part is 2x plus y equal to 7. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. 2x plus y equal to 7. I told you previously that how can we find the solutions of given linear equation in 2 variable. ठीक है, I think second method is very easy. Just you have to put any one value and automatically second value will come. Okay, तो हम चेक करते हैं. एज यू विश, आप यहाँ x रखो या y रखो. ठीक है ना. मैं y से स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं स्टार्ट. पुट, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, पुट y इक्वल टू 1. एज यू विश, y रखोगे या x, बोथ आर सेम, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो आप. ठीक है, पुट y इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है ना. मैंने फर्स्ट में y को क्या रखा, इन 1. ठीक है, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 7. तो 2x क्या आ जाएगा, 1 को वहाँ ले जाएंगे, 7 माइनस 1 6,
तो x क्या आ गया 6/2, दैट मीन्स 3। ठीक है ना, y को 1 पुट किया, x की वैल्यू 3 आ गई। अब आप चेक कर सकते हो कि 3x और y 1 बोथ आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखो 3 and x, 3 to 6 और यहाँ 1 रखा 7, तो 6 और 1 7, 7 इक्वल टू 7, तो लेफ्ट और राइट सेम होगी क्योंकि y 1 था और ये 6 आया, 3 2 सा। ठीक है, तो दीज आर द सॉल्यूशंस। तो आप लास्ट में लिखोगे, पहले x चेक रखते हैं फिर y की वैल्यू। 3, 1 इज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। नाउ सेकंड सॉल्यूशंस, वी हैव टू फाइंड सेकंड सॉल्यूशन। नाउ वी कैन पुट, अब आपने y रखा था एज ए विश, आप y को चलाओ या आप x की वैल्यू रखो। ठीक है, तो मैं अब x रख रही हूँ, पुट x इक्वल टू 1। दिस इज अवर चॉइस कि हम x की वैल्यू को 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, -1 -2, एनी वैल्यू वी कैन पुट। ओके, पुट x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। मैंने फर्स्ट में x को 1 रखा, तो 2 क्रॉस 1 प्लस y इक्वल टू 7। ठीक है ना, तो ये 2 क्रॉस 1 2, वहाँ जाके ये माइनस में हो जाएगा, y इक्वल टू 7 - 2 5, तो y क्या आ गया 5। ठीक है, तो क्या होगा 1 and 5, क्योंकि x पहले होता है फिर y, इज आवर सॉल्यूशन, इज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दिस इज सेकेंड सॉल्यूशन। In this way, we have to find 4 solution. Now we have to find third solution. Now we can put the value of y as 2. Put y equal to 2 in first equation. ठीक है, y को 2 रखा, तो 2x plus 2 equal to 7. तो 2x equal to 7 minus 2 क्या हो जाएगा 5. तो x क्या आ जाएगा 5/2. ठीक है, तो 5, यस बेटा, द सॉल्यूशंस मे बी इन रैशनल नंबर्स। सॉल्यूशन 1/a/b की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो क्या है 5/2 and 2 इज सॉल्यूशन। दिस इज अवर थर्ड। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट फोर्थ सॉल्यूशन। फोर्थ सॉल्यूशन के लिए क्या पुट करोगे? ठीक है, फोर्थ सॉल्यूशन के लिए क्या पुट करना है आपने? पुट y to the as you wish, we can y put the value of y equal to 3 और x equal to 2. It's our choice, we can put any value, x or y कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो पुट y equal to 3 in first equation। ठीक है, y को 3 पुट कर दोगे तो 2x plus 3 equal to 7, 2x equal to 7 minus 3 4, तो x क्या आ जाएगा 4/2 means 2, दैट मीन्स 2 and क्योंकि x 2 है y 3 इज solution. This is our fourth solution. These are very easy sum. We have to find 4 solution. Very easy sum. Put any value in one variable and automatically second variable value will come. Okay. These all are the solutions of first part. Now my dear students, we will discuss our second part. Second part is very easy part. The statement is pi x plus y equal to 9. Don't put the value of pi. pi की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट आप x और y में काम करना है। Put any value of x and y and the only one variable and second variable value will automatically will come. Okay, तो हम पुट करते हैं x की वैल्यू। ओके, तो आप लिखोगे पुट x equal to 1 in, this is our first equation. ठीक है, इन आपकी मर्जी, आप फर्स्ट लो, सेकेंड लो या स्टार लो, कुछ भी लो, इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो पाई x तो 1 है प्लस y इक्वल टू 9, तो y क्या आ जाएगा 9। अब ये पाई प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा 9 माइनस का। ठीक है, तो 9 माइनस पाई हमारी सेकेंड वैल्यू हुई है। फर्स्ट क्या थी हमारी 1, तो 1 and 9 माइनस पाई इज सॉल्यूशन। ये फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। सेकेंड, पुट x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। x को 2 पुट कर दिया, तो 2 पाई प्लस y इक्वल टू 9, तो y क्या आ गया 9 माइनस 2 पाई, ये वहाँ चली जाएगी। ओके, दैट मीन्स 9 एंड सॉरी पहले x की वैल्यू क्या है 2, 2 and 9 minus 2 pi is our solution. This is our second solution. Okay, now third, put x equal to 3 in first equation. That means 3 pi plus y equal to 9. तो y क्या आ गया 9 minus 3 pi. ये पॉजिटिव 3 pi है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है ना, तो पहले x की वैल्यू 3 और फिर y की वैल्यू
इज आवर सॉल्यूशन. ठीक है, इन दिस वे यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यू विल ऑटोमेटिकली कम. ठीक है, अगर आप y की वैल्यू पुट करते हो तो देखो सॉल्यूशंस क्या बनता है. फोर्थ, हम फोर्थ में y की वैल्यू पुट करते हैं. पुट y की प्लेस पे आप 1 पुट कर दो. पुट y इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, तो पाई x प्लस 1 इक्वल टू 9. तो पाई x इक्वल टू, ये 1 पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव होकर 9 माइनस 1 8 हो गया. ठीक है, तो पाई x की वैल्यू क्या है 8. तो x क्या आ जाएगा 8 बाई पाई. दिस इज वेरी इजी सम. देखो अभी दोनों मल्टीपल में, मुझे x चाहिए तो पाई तो नीचे डिवीजन में जाएगा. इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ y तो x की वैल्यू ऐसी आएगी. अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो तो y की वैल्यू इस फॉर्म में आएगी. ऑल आर सेम, कहीं भी डिफरेंस नहीं है. आप x पुट करो या y, वो दोनों सॉल्यूशंस होंगे ही होंगे. ठीक है ना. सो दिस इज अवर सम. नाउ माय डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट इज सेम एज फर्स्ट पार्ट. सो दिस पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ. Now my dear students, now we will discuss third sum of exercise 4.2. And thus check which are the solutions of given linear equation and which are not. हमें solutions given है 5. हमें check करना है कि ये जो हमें values given है 5. We have to check these values are the solution of given equation or not. And I told you previously that solutions क्या होते हैं. solution वो होते हैं that value of x and y, when we put all these two value in equation, left and right will equal. अगर हम उन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होगी. दैट मीन्स दैट टू वैल्यूज आर द सॉल्यूशन, अदरवाइज नो. अब नाउ इन दिस सम वी हैव टू चेक. हमें वैल्यूज गिवन है, हमें बताना है कि ये वैल्यूज का सॉल्यूशन है या नहीं है. देन व्हाट वी विल डू, हम करेंगे, हम दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करेंगे. ठीक है ना. आफ्टर पुटिंग, if left and right will equal, that means these are the solution, otherwise no. okay, चलो स्टार्ट करते हैं. given equation is x minus 2y equal to 4. this is our given equation. ठीक है ना. तो फर्स्ट चेक करना है, तो इस इट मीन्स आप पुट कर दोगे इस टू इन दीज टू वैल्यूज को इसके अंदर. ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, तो ये फर्स्ट वैल्यू होती है x की, सेकंड वैल्यू होती है y की. ठीक है ना. आप करोगे पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन. हम यही पुट करेंगे ना. x को क्या करेंगे 0, y को y 2 है, इसको फर्स्ट में पुट करके चेक करते हैं पुट होता है कि नहीं होता. ठीक है. तो x 0 माइनस 2 और y भी क्या है 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. ये चेक करने से हमें क्या लगा कि लेफ्ट हैंड साइड में -4 है, राइट हैंड साइड में 4 है. इज इट इक्वल? नो. आप लिखोगे हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये तो इक्वल नहीं होता. इफ दे आर नॉट इक्वल इट मीन्स जो हमने वैल्यूज पुट की हैं वो उसकी क्या है सॉल्यूशन नहीं है. आप लिखोगे नो. 0 2 इज नॉट द सॉल्यूशन. वेरी इजी सम. 0 2 इसका क्या है सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है. चलो सेकंड चेक करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या है 2 और 0. ठीक है ना. तो 2 और 0 हमारी इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4. 2 मीन्स x की वैल्यू, 0 मीन्स सेकेंड वैल्यू y की वैल्यू. तो आप करोगे पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन. ये फर्स्ट अलग गया है और ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसे लेट किया है. ठीक है. इस फर्स्ट में पुट, ये फर्स्ट पार्ट है नॉट इक्वेशन, और ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन है. ठीक है. इस फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया. तो आप करो 2 माइनस 2 क्रॉस 0, यही है ना. 2 माइनस 2 क्रॉस 0 इक्वल टू 4. तो यहाँ तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 4, दैट मीन्स 2 इक्वल टू 4. क्या 2 और 4 कभी इक्वल हो सकते हैं? यस और नो? नो. आप लिखोगे हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो 2 and 0 is not the solution. This is our answer.
वेरी इजी चेकिंग दैट दीज आर द सोल्यूशन और नॉट. फर्स्ट भी पार्ट सोल्यूशन नहीं है सेकंड में, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड पार्ट को पुट किया तो लेफ्ट और राइट तो इक्वल नहीं आ रही, दैट मीन्स दे आर नॉट द सोल्यूशन. ठीक है, नाउ वी विल ट्राई फॉर थर्ड पार्ट. अब हम थर्ड पार्ट के लिए ट्राई करेंगे. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स वी विल ट्राई अवर थर्ड पार्ट. चेक करते हैं कि क्या थर्ड पार्ट सोल्यूशन है या नहीं है. तो थर्ड पार्ट में क्या है, 4 and 0. हमारी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4. ठीक है ना, 4 and 0 इट मीन्स x क्या है 4 और y क्या होगा 0. आप लिखोगे पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0. x को 4 और y को 0 पुट किया, चेक करो. ठीक है, x को 4 और y को 0, 2 माइनस क्रॉस 0 इक्वल टू 4. हेयर 4 इक्वल टू 4, हेयर लेफ्ट राइट आर इक्वल, क्योंकि 4 और 4 तो सेम होंगे. आप लिखोगे हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. जब लेफ्ट और राइट सेम आ जाए तो आप क्या कहोगे, यस यस 4 0 इज द सॉल्यूशन, कि 4 और 0 क्या है, सॉल्यूशन है. ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट. √2 और 4√2 के लिए चेक करते हैं. ठीक है ना, फोर्थ पार्ट को हम ट्राई करते हैं. तो वही सेम, आप x ये और y ये पुट करोगे. x माइनस 2y इक्वल टू 4, दिस इज अवर गिवन इक्वेशन. आप लिखोगे पुट x इक्वल टू √2 एंड y इक्वल टू 4√2. ठीक है ना, मैंने x को √2 और y को 4√2 पुट करना है यहाँ पर इन फर्स्ट इक्वेशन. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन चल रही है. तो x √2 यहाँ पे √2 पुट करोगे, माइनस 2 y के प्लेस में क्या पुट करना है 4√2. दिस इज इक्वल टू 4. तो √2 को पहले ऐसे रखते हैं, पहले इसे सोल्व करते हैं. 4 2 ज़ा 8, 8√2, दिस इज इक्वल टू 4. अब √2 और √2 को अनलाइक टर्म्स है. देखो √2 लाइक है, 8√2 दोनों अनलाइक है. ठीक है ना, अब यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो √2 को कॉमन ले सकते हो आप. यहाँ 1 रह गया, यहाँ क्या रह गया 8, दिस इज इक्वल टू 4. तो 8 में से 1 गया 7, बट माइनस का 7 होगा, तो यहाँ आ जाएगा -7 और √2 से मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू 4. क्या ये दीज टू टर्म्स आर इक्वल, नो. आप लिखोगे हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. यहाँ तो लेफ्ट टू राइट सेम नहीं है, तो क्या होगा, तो ये होगा, आप लिखोगे नो, √2 एंड 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन. बिकॉज जब लेफ्ट राइट सेम होते हैं तब सॉल्यूशन होते हैं, अदरवाइज नहीं होते. ठीक है, एंड द लास्ट फिफ्थ पार्ट, वेरी इजी, 1 and 1. यू हैव टू पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, एंड यू हैव टू चेक द लेफ्ट and right are equal. If equal then yes, otherwise no, it is not the solution. Okay, now next part, find the value of k if x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of 2x plus 3y equal to k. If it is given that the two values is the solution, two values are the solution of the given equation, तब क्या होगा, तब लेफ्ट टू राइट पुट करने पर इक्वल होंगे, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ओके, तो आप लिखोगे सॉल्यूशन, वेरी इजी सम. आपके पास स्टेटमेंट क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू k. ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है. आप लिखोगे हेयर इट इज गिवन, क्या गिवन है, दैट x equal to 2 and y equal to 1 are solution of given equation, solution of 2x plus 3y equal to k. Here it is given, यहाँ ये दिया हुआ है कि x equal to 2 and y equal to 1 are the solution of the given equation. अगर solution है तो हम क्या करेंगे, पुट, हम वैल्यूज को पुट करेंगे x equal to 2 and y equal to 1 इन फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है ना, मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ. पुट करो x इक्वल टू 2, 2 क्रॉस 2 प्लस y इक्वल टू 1, तो क्रॉस 3 क्रॉस 1 इक्वल टू k. 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू k. तो क्या होगा, 3 और 4 7 इक्वल टू k. तो k की वैल्यू क्या होगी, 7. वेरी इजी सम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सम फॉर 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आपको यहाँ कोई भी x और y की वैल्यू, इट इज नॉट नेसेसरी कि 2 और 1 होगी, एनी वैल्यू इट विल बी गिवन, एंड अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल इज ऑल्सो गिवन. अब आपको कंडीशन ये गिवन है कि ये जो 2 वैल्यूज है ना, ये लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं.
if they are the solution then you have to find the value of any variable. K given है, a b c any variable it is given in place of k, ठीक है ना. अगर solution है then it will be very easy to find the value of k. वैल्यू solution का मतलब x और y की उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करो, लेफ्ट और राइट सेम आ जाएगा. इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. क्लियर? Very easy and most important exercise 4.2 and 4.1 also. Okay, if there is any doubt then you can tell me on comment box. Very easy sum, so you can do very easily and your notebook should be complete, my dear students, because today you have to complete your notebook. Now my dear students, one thing I want to tell you again, solutions क्या होते हैं and if check कि दे आर द सोल्यूशन और नॉट. वेरी इजी कंसेप्ट. सॉल्यूशंस होते हैं, कोई लीनियर इक्वेशन है, लेट x प्लस वाई इक्वल टू 4, लीनियर इक्वेशन है. सॉल्यूशन वो होते हैं x और y के प्लेस पर वैल्यू पुट करने पर इफ लेफ्ट और राइट इक्वल हो, दैट मीन्स दे आर द सॉल्यूशन. ठीक है. अब चेक करना कि ये सॉल्यूशन है या नहीं, तो आप x और y की प्लेस पर वो वैल्यू पुट करोगे. ठीक है ना. जैसे मैंने यहाँ कहा चेक करो x इक्वल 0 एंड 5, चेक करना है कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस और नॉट, कि ये 0 5 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. इफ यू हैव टू चेक दैट मीन्स वी हैव टू पुट फर्स्ट x की होती है, सेकंड y का. आप लिखोगे पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. तो 0 प्लस 5 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 4. ये कभी इक्वल होगा? नो, दे बोथ आर नॉट इक्वल. अगर इक्वल नहीं है तो जिस वैल्यू को मैंने चेक किया है दैट मीन्स जो वो वैल्यू है वो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. वेरी इजी कंसेप्ट. अगर सॉल्यूशन चेक करना हो तो एक्स और वाई की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दो, लेफ्ट और राइट को सेम देखो. इफ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, अगर हमें सॉल्यूशन निकालने हैं कोई भी एक वैल्यू एज्यूम करते जाओ और ऑटोमेटिकली उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद सेकेंड वैल्यू विल कम. Okay, thank you my dear students.